So today I will start with this demand analysis. What is demand? What is demand schedule, right? And what is demand curve? Then elasticity of demand, how to calculate elasticity of demand, income elasticity, price elasticity. Those all topics we will cover today related to demand, right? I have the various files, PPTs on this of the last years also, but I will teach from this textbook of 12th standard SYBC. It is very easy and it is easy to understand also. But I will share the other PPTs also, so you can go through them also. What is demand actually? In ordinary language, na, demand means desire. अगर हम डिमांड की बात करें जनरली ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर, कि कोई भी चीज हमें चाहिए, दैट इज डिमांड. बट इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिजायर से डिमांड नहीं बन जाता. इन इकोनॉमिक्स डिमांड डजंट मीन्स ओनली डिजायर. डिजायर तो हमारी बहुत सी होती है, but in economics demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. Willingness and ability to pay is also important in economics with demand. Thus we can say कि demand is desire plus willingness to purchase plus ability to pay. अब इसका मतलब क्या होता है? डिजायर तो सबको पता है कि हमारी कोई विश है कि मुझे आईफोन लेना है. अब विलिंगनेस टू पे का मतलब ये होता है कि आईफोन 1 लाख का है तो मैं 1 लाख पे करने के लिए रेडी हूँ. मुझे उसकी 1 लाख प्राइस ठीक लग रही है, महंगा नहीं लग रहा है मुझे. आई एम रेडी टू पे. और एबिलिटी टू पे मतलब मेरे पास 1 लाख रुपया है, होना चाहिए. एबिलिटी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट खरीदने की जो हमारा डिजायर है, और हम विलिंग भी होने चाहिए उतना अमाउंट पे करने के लिए. तीनों कंडीशन साथ में होगा तो ही इकोनॉमिक्स में वो डिमांड होता है. ये क्लियर है ना? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. अब जैसे कि पुअर पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, वो डिमांड नहीं है क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है. डिजायर है और वो पे कर भी देगा, लेकिन उसके पास है ही नहीं पैसा. Which person bought a car? So that is demand. So this was just in simple words. ये तुम लोगों को याद रखना है. डिमांड पे कुछ भी लिखते हो तो desire plus willingness to purchase plus ability to pay and one definition. This is the simplest definition of all. The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. Demand is always related to time and price. डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस. तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमांड इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट. हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जो एरिया का डिमांड है ना वो 1000 लीटर ऑफ मिल्क है. दैट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. कंप्लीट स्टेटमेंट कब होगा? हमारे एरिया का डिमांड 1000 लीटर ऑफ मिल्क पर डे है एट अ प्राइस ऑफ ₹80 पर लीटर. तो टाइम और प्राइस भी एसोसिएट होता है क्वांटिटी के साथ. डिमांड के साथ प्राइस और टाइम भी मेंशन होना चाहिए, तो ही हम इसको डिमांड बोलते हैं. तो डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड with reference to time and price. If time and price is not mentioned, we cannot say demand in economics. So demand, desire, willingness to pay, ability to pay, plus it should be related to time and price. So this is demand. Demand का meaning इतना लिखोगे काफी है. अब what is demand schedule? What is demand schedule? Schedule means a tabular representation. टेबल में डिमांड को रिप्रेजेंट करना, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. और जब हम टेबल बनाते हैं, जब हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, तो उसमें हम प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है एक कमोडिटी का, वो बताएंगे.
What will we show in the table? A relationship between price and demand for a particular commodity. Now, there are two types of demand schedule. One is individual demand schedule and one is market demand schedule. Now, what is individual demand schedule? Individual demand schedule is the quantity of one consumer. इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी खरीदेगा. That is individual demand. And individual demand schedule is a tabular representation of the individual demand of that commodity. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक कंज्यूमर का है, कमोडिटी का नाम एक्स है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है. तो फर्स्ट कॉलम क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. और सेकंड कॉलम क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. तो प्राइस एंड क्वांटिटी. तो ये टेबल में नंबर्स तुम लोग अपने रैंडम ले सकते हो. प्राइस जैसे जैसे कम होता है डिमांड इंक्रीज होता है, वो हमें बताना है. तो सी इन द फर्स्ट रो प्राइस इज 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. और यूनिट्स भी लिखना जरूरी है. एक्स वो नंबर है, केजीस है, लीटर है, क्या है. प्राइस एंड क्वांटिटी इन यूनिट्स. तो if price is 10, the consumer will buy 1 unit. If price decreases to 8, consumer will buy 2. If price decreases to 6, the consumer will buy 3, and so on. So while preparing, अगर कुछ आता है कि prepare an individual demand schedule, and what is demand schedule? So you have to take price in a decreasing order and demand in a increasing order. And this is the explanation of the schedule. The table shows different quantity of commodity X purchased by an individual. एक कंज्यूमर का है ये, एक कंज्यूमर, इसीलिए हम इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. At various prices, and it can be observed that less quantity is demanded at rising prices and more quantity is demanded at falling prices. प्राइस गिरेगा तो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है. और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. जो तुम्हें डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड किसी पे भी क्वेश्चन आता है तो लिखना ही पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. So there is a inverse relationship between price and quantity demanded. What does inverse relationship means? Inverse relationship means कि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है. उल्टा, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, उसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं. So there is a inverse relationship between price and quantity demanded. Right? Till here it is clear now to everyone? Any question? No, sir. No, sir. Then what is individual demand curve? यही टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व. जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जो कर्व बनेगा दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. So here it is shown. What you should remember is कि on the x-axis you will always measure the quantity demanded. X-axis पे हम हमेशा quantity demanded लेंगे और y-axis पे हम हमेशा price लेंगे. Quantity demanded and price. Price on y-axis, quantity demanded on x-axis. तो यहाँ पे price था 2, 4, 6, 8, 10. तो वो हमने y एक्सिस पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10. And the demand was 1, 2, 3, 4, 5. That you will mark on the x-axis 1, 2, 3, 4, 5. And you will mark the point, corresponding point here. 1 and 10, this is the point.
2 and 8, this is the point. 3 and 6, this is the point. 4 and 4, this is the point. 5 and 2, this is the point. And you will join all the points, so you will get the demand curve. This DD is the demand curve, individual demand curve, which is downward sloping from left to right. So it's very simple, drawing a individual demand schedule, and from that drawing this individual demand curve. And what, how you will write the explanation of this? The x-axis, what does we are taking on x-axis? So x-axis represents quantity demanded, y-axis represents the price, and DD is the demand curve, you know, and it slopes downward from left to right. वो भी लिखना है. एंड डाउनवर्ड, कोई भी कर्व डाउनवर्ड जब स्लोप करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द सेम थिंग जो हमने टेबल में रिलेशनशिप फाइंड किया था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. So the downward sloping demand curve from left to right, that also indicates the same thing, an inverse relationship between price and quantity demanded. This statement you should definitely write in demand schedule, demand curve, law of demand, anything. Clear है ये भी ना? ये भी क्लियर है सबको? सिंपल है ये बहुत टॉपिक, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं तुम लोगों को. दैट आल्सो विल डिस्कस. मार्केट डिमांड शेड्यूल, वो इंडिविजुअल शेड्यूल था. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कस्टमर in the market. If there are 10 customers, so all the 10 customers will buy how much units of our commodity at a given price and at a given period of time. तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा? तो हमें यहाँ पे, ये तो वही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम 108,642. Now we are assuming here that there are three consumers: consumer A, consumer B, consumer C. And market demand is what? The total of all the consumers. Because in a market there may be thousands, lakhs of consumers. But here to explain, we are taking that there are three consumers, right? Here also you have to remember कि प्राइस तो डिक्रीजिंग है, हर कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीजिंग होना चाहिए. और सेम भी नहीं लिख सकते. हाँ, 5, 10, 15 ए में लिखा तो बी में भी 5, 10, 15 सी में भी सेम नहीं लिखना है. बिकॉज हर कंज्यूमर का इनकम अलग होगा, उसका डिमांड अलग होगा एट अ गिवन प्राइस. ऑल विल नॉट बाय सेम क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि द डिमांड शुड बी इंक्रीजिंग as the price is decreasing. Numbers can be rendered. Clear na? And then this is nothing but the total. That is 5 plus 10 plus 15. The total market demand. Similarly, on the other rows. And here, same explanation. Different quantities of commodity X purchased by different consumers. It can be observed that less quantity is demanded at rising prices and more quantity is demanded, and it shows the inverse relationship between price and quantity demanded. Same. And this is your market demand. See, y-axis पे वही price 2, 4, 6, 8, 10. But here what we will mark is the total market demand 30, 45, 60, 75, 90, not the individual demand. We will mark on the x-axis the total demand 30, then this 40, 60, 75, 90, and we will join the points. So we will get the demand curve, which will also be downward sloping. Individual demand curve हो या market demand curve हो, both are downward sloping.
from left to right, and that indicates inverse relationship between price and demand. एक नीचे जा रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. Clear है? What is demand? What is demand, individual demand schedule, and what is market demand schedule? What is individual demand curve, and what is market demand? है ना? क्लियर है ना सबको ये? बिकॉज तुम लोगों को क्या क्या पोर्शन में है, कल ग्रुप में मैंने भेजा था, तो आई विल चेक दैट आल्सो, बट डिमांड तो है, ये सब पोर्शन में है, राइट? व्हाट आई वाज टीचिंग, डिमांड शेड्यूल था, डिमांड कर्व था. नाउ दे माइट आस्क, और यू शुड नो फॉर द नॉलेज, कि why the slope is downward sloping, कि जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? तो उसके ये तीन रीजन है. देयर आर थ्री रीजंस ऑफ दिस, राइट? फाइव रीजन है, न्यू कंज्यूमर भी है, तो मेजर ये तीन रीजन भी पढ़ोगे तो काफी है. कि पहला तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ने वाले हैं डिमांड के बाद. ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब एक कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उस कमोडिटी से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम नंबर में मेंशन करेंगे, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. ये हम कंज्यूमर बिहेवियर में डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जब कंज्यूमर कंटिन्यूअसली एक के बाद अगर एक हम कुछ कंज्यूम करेंगे तो जो फर्स्ट यूनिट से हमें यूटिलिटी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सबसे ज्यादा होगा. फिर जो सेकेंड यूनिट से मिलेगा वो उससे कम होगा, थर्ड यूनिट से उससे कम होगा, एंड सो ऑन. मतलब हम अभी कॉलेज से तुम घर आए हो, बहुत भूख लगी है, मम्मी ने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करके रखा है, तो फर्स्ट बाइट खाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा. फिर जब सेकेंड पीस खाओगे तो उसमें थोड़ा कम आएगा, फर्स्ट से थर्ड में और कम आएगा, फोर्थ में और कम आएगा, राइट? और पूरा मीडियम पिज्जा खाने के बाद मम्मी अगर एक और पिज्जा दे देगी तो नेगेटिव बोलोगे, नहीं यार अभी बस पेट में दर्द हो रहा है. तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कम होते रहता है जैसे जैसे वो कंटिन्यूअसली एक कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करता रहता है, और इसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. दूसरा है इनकम इफेक्ट. जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, तो प्राइस गिरने से क्या होता है, हमारा परचेसिंग पावर बढ़ता है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर? सपोज कि हमारे पास वड़ा पाव का कितना प्राइस है, 15 रुपया प्राइस, तो हमारे पास 120 रुपीज है, तो हम कितने वड़ा पाव खरीद सकते हैं? 8 वड़ा पाव. 120 डिवाइड बाय 15, वी कैन बाय 8 वड़ा पाव. बट अगर प्राइस 12 रुपीज हो जाती है, we still have 120 rupees, तो our purchasing power increases. मतलब same 120 rupees से 120 divided by 12 we can buy 10 vada pav. So therefore our purchasing power increases from buying 8 vada pav to 10 vada pav, the money, the amount of money being the same. तो प्राइस गिरने से परचेसिंग पावर कैसे बढ़ता है, ये क्लियर है ना? This is known as income effect, and this is also the reason of downward sloping demand curve. Then substitution effect. अब दो तरह के गुड्स होते हैं, substitute goods and complementary goods, which we will discuss again in elasticity of demand. In brief, substitute goods मतलब क्या? एक के बदले दूसरा. फुटबॉल के बहुत फैंस होंगे तो तुम लोगों को पता होगा ना, सब्स्टिट्यूट होता है ना, एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को खेलने का मौका देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? वड़ा पाव नहीं मिला तुम्हें तो वो बोलेगा समोसा है, तो यू कैन बाय समोसा में. चाय कॉफी, मे बी यू वांट टी, बट
The shopkeeper has coffee. You want Coca-Cola, but maybe shopkeeper has Thumbs Up. So you may buy the other drink also because this all are substitute of each other. And complementary क्या होता है? जो दोनों साथ में यूज करना पड़ेगा. If you will buy one, you will have to buy the other also. Like if you buy a car, you will have to buy petrol also. Or if it's CNG or diesel, whatever, you will also have to buy the fuel. Right? So complementary means where if you buy one product, you will have to buy the other product also with it. Those commodities are known as complementary goods. And the commodity which replace the other commodity, that commodities are known as substitute goods. और होता क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स में? जब कोई भी चीज, कोई भी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा तो हम वो बाय करेंगे. यानी अगर कॉफी का प्राइस कम होगा तो हम, चाय का प्राइस बढ़ रहा है और कॉफी का प्राइस कम है, so we will buy coffee more. Consumer will buy coffee more. So it depends on personal preference also. Someone likes coffee only, so that person will buy coffee only, and some person will like chai, so that person will buy chai only. But a general tendency कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा कंज्यूमर वो ज्यादा बाय करेगा, उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं. And that is also the reason of downward sloping demand curve. Then there are multi-purpose use. Few commodities ना we can use for several purpose. Like milk, चाय बना सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं, खीर बना सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के लिए यूज करो, एसी, फैन, लाइट, यू कैन यूज फॉर मल्टीपर्पज. तो इफ उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी जब प्राइस फॉल होगा. देन न्यू कंज्यूमर्स, जब प्राइस कोई कमोडिटी का कम होता है ना तो नए कंज्यूमर भी उसको खरीदने लगते हैं जिनको वो महंगा लग रहा था. यानी जब नया नया आईफोन आता है तो वो 1 लाख प्लस होता है, तो जब उसकी वैल्यू 70 तक आ जाती है तो ज्यादा लोग खरीदते हैं. और अभी भी 16 आ गया है तो भी लोग 14 भी खरीदते हैं क्योंकि उसकी प्राइस 50-60 अराउंड होती है. तो मे बी जिनको आईफोन ही लेना है तो दे माइट बाय द ओल्डर वर्जन व्हेन द प्राइस कम्स डाउन. तो न्यू कंज्यूमर एंड. So therefore, the demand curve is downward sloping. Types of demand तो तुम लोगों को नहीं है, ठीक है ना? See, what determinants of demand I will explain in brief. Just what is this determinants? यानी factors affecting demand. कौन से चीजों से डिमांड चेंज होगा, क्या चेंज होने से डिमांड चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. प्राइस, तो प्राइस तो मालूम है, प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड. प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा. तो एक प्राइस है. और कौन से फैक्टर्स है? इनकम, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? ज्यादा खरीदोगे. Same income of a consumer decides purchasing power. Rise in income will lead to rise in demand. Fall in income, fall. फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा तो क्या होगा? हमारे गुड्स का डिमांड कम होगा. सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड को ज्यादा खरीदेंगे. एग्जाम्पल, अगर देखो कॉफी का प्राइस कम होता है तो लोग कॉफी ज्यादा खरीदेंगे और चाय फिर कम खरीदेंगे, तो चाय का डिमांड कम होगा अगर कॉफी का प्राइस कम होता है तो. एंड वाइस वर्सा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? सेम. मतलब अगर पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ रहा है, फ्यूल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है ना, तो कार का डिमांड भी कम हो जाएगा क्योंकि लोग सोचेंगे चलो मैं कार तो खरीद लूं
लेकिन ये पेट्रोल रोज का डालना आने जाने के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, कार का भाव बहुत बढ़ रहा है तो लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का डिमांड भी अपने आप कम होगा। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। नेचर क्या होता है, generally on the basis of nature na, we can classify any commodity into necessity and normal goods and luxury goods, necessary goods, normal goods and luxury goods. अब necessary goods like क्या, salt, medicine etc. salt का भाव कितना भी बढ़ जाएगा तो मम्मी नमक कम थोड़ी डालेगी ना सब्जी में, और सॉल्ट का भाव आधा भी हो गया तो मम्मी डबल नमक थोड़ी डालेगी। हम डबल नमक भी नहीं खरीदेंगे, आधा नमक भी नहीं खरीदेंगे, भाव कम ज्यादा भी होगा तो नमक उतना ही खरीदेंगे जितनी जरूरत है। मेडिसिन भी कम ज्यादा होने से हम कम ज्यादा नहीं खरीदेंगे। मेडिसिन जो डॉक्टर ने बोला है, वी विल बाय दैट एंड वी विल कंज्यूम अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो नेसेसरी गुड्स का डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस, that depend on the necessity. नॉर्मल गुड्स का डिमांड तो ऑब्वियस प्राइस पे डिपेंड करेगा। लग्जरी गुड्स का डिमांड भी प्राइस से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि जो लग्जरी गुड्स बाय करते हैं ना, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा बट इतना नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है। दोस विल बाय द लग्जरी गुड्स। BMW बाय करना है, राइट, है ना, तो रॉयल एनफील्ड, वैसे तो आजकल ये लग्जरी गुड्स क्या बहुत लोग खरीदने ही लग गए। बाइक तो मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स बाय ओनली, बट बाइक भी अलग अलग आता है। तो डिपेंड्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा डिमांड भी उतना ही बढ़ेगा। लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। देन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। इफ वी एक्सपेक्ट, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो चीज को हम आज ही खरीद के रखेंगे। सो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स that the price will increase in the future, then the consumer will buy more today and vice versa. Then advertisement, जितना एडवर्टाइजमेंट होता है ना डिमांड उतना बढ़ता है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट देख के कंज्यूमर गेट्स अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। एंड बार बार जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कोई चीज का तो कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट होता है एंड कंज्यूमर इज buying that product, cosmetics, toothbrush, etc. Mostly the FMCG products. Then obviously taste, habit, fashions पे तो डिपेंड करता ही है। जैसे जो चाय कंज्यूम करता है तो वो चाय तो खरीदेगा, जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट खरीदेगा। अब हैबिट्स मतलब जो वेज है वो वेज ही खरीदेगा, जो नॉन वेज है वो नॉन वेज भी खरीदेगा। अब जो वेजिटेरियन है, एगिटेरियन भी नहीं है, तो वो तो एग का भाव ऊपर जाए कि नीचे जाए उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। फैशन क्या चल रहा है वो भी डिपेंड करता है। यू विल बाय ओनली द करंट फैशन प्रोडक्ट्स, नॉट द आउटडेटेड वंस। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स कि व्हाट इज द जीएसटी, टैक्स रेट, क्लाइमेट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं ना। जैसे जैसे कि अभी गरबा आता है मुंबई में तो सब लोग ट्रेडिशनल गरबा वाले ड्रेस बाय करते हैं, तभी वो ज्यादा बिकता है। शादी वादी का सीजन आता है तो शादी के कपड़े ट्रेडिशनल ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल है, कस्टम्स है, राइट। तो एवरीवन मोस्टली वेयर दोस टाइप ऑफ क्लोथ्स। गणपति आता है तो गणपति की मूर्तियां, उसका डेकोरेटिव स्वीट्स एंड ऑल, दिवाली पे, देन होली पे, देन ईद पे, and even on the Christmas. The various, what are the custom? क्या custom, क्या tradition? So demand depend on that also. So these were various factors on which demand used to depend. Demand किससे change होगा? And now the important law of demand. Law of demand. What does this law explains?
And what does this law say? So this law of demand was introduced by whom? The Professor Alfred Marshall. Professor Alfred Marshall introduced this law of demand in his book Principles of Economics, which was published in 1890. कितने साल ओल्ड हो गया ये लॉ? How much old is this law? Can anyone count? अभी तो चल रहा है 2025. So 135 years old is this law. And what does this law explain? The law explains the relationship between the price and quantity. So what you have to learn in this? First of all, this you should learn. The statement or statement word to word लिखना. Statement word to word ही लिखना है. कोई भी लॉ का जो स्टेटमेंट होता है क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में ऑलरेडी पढ़ा. तो ये फर्स्ट टाइम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया था. और जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था इन द फर्स्ट इक्वल लेक्चर कि ceteris paribus, इसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. तो ऑल द लॉ यही स्टेटमेंट से शुरू होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अदर थिंग्स मतलब क्या? जो ये फैक्टर्स हमने पढ़े, टैक्स चेंज नहीं होगा, टेस्ट हैबिट चेंज नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होगी, इनकम चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होगा, तो ये लॉ काम करेगा. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. Very simple. ये स्टेटमेंट भी सबको याद हो जाएगा. सिंपल है ना? Right? This is also important. Then there is a inverse relationship. जो हमने ऑलरेडी काफी बार ये स्टेटमेंट रीड किया. आज ये स्टेटमेंट को याद ही करते हैं. ये तो कुछ है भी नहीं, सिंपल है. Inverse relationship between price and quantity demanded. What are the assumptions? Assumptions वही कि कुछ भी चेंज नहीं होगा. Income will be unchanged. Income will not change. Population will not change. Price of substitute goods remain constant. Price of complementary goods remain constant. No expectation about future. No change in taste habit preference. तो जो ऊपर था वही नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. यानी ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही दिस लॉ विल वर्क. So this all are assumptions which we already discussed. Now, if the question comes to explain the law of demand with the help of demand schedule and demand curve, तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो ये लिखना है, यहाँ से एक स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये स्टेटमेंट लिखना है एज इट इज, और ये भी लिखना है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. देन यू विल राइट द assumptions. ओनली दिस मार्क जो हेडिंग है वही लिखोगे. assumption को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Right. And then what you will do is, then you will prepare this demand schedule. Then you will prepare this demand schedule. Demand schedule में price of commodity which should be in decreasing order, then quantity demanded which should be in increasing order. Then the explanation of demand schedule वही कि प्राइस 50 था तो डिमांड 1 है, प्राइस 40 हो गया तो डिमांड. ये अपने वर्ड्स में करना है, ये कुछ लर्न रटा नहीं है. नंबर रैंडम सीक्वेंस पे फिर उसी का डिमांड कर्व बनाना है which should be downward sloping.
फिर वही लिखना है कि एक्स एक्सिस पे हम on x axis we measure the demand for commodity, y axis we measure, है ना, and BD is the demand curve which is sloped downward and there is an inverse relationship. Same, बस this is law of demand. इतना ही लिखना है law of demand में. This statement किसने introduce किया, कब किया, assumption के head points, preparing the demand schedule, explaining the demand schedule in words, preparing the demand curve and writing these 2-3 lines is enough if any question comes कि explain the law of demand. किसी को कुछ पूछ रहे हैं यहाँ तक law of demand से related anything or anything what we have learned till now? समझ रहे हैं सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? आदित्य, बुद्धिमान, एनवी, चिन्मयी, भूगल, करुणा, निशांत, निशी, प्रखर, साथ, संकिता and Shikha, Sumit, Sushant, Saurabh. Everyone is clear, right? Yes. ये डिमांड टॉपिक हुआ है कॉलेज में? हुआ है डिमांड टॉपिक अभी तक? लॉ ऑफ डिमांड हुआ है? यस सर, हो गया है. हो गया डिमांड तो सप्लाई आज वो था, इक्विलिब्रियम कराया क्लास में. तो उसके सम्स भी करवाए क्या? हाँ, वो तो आएंगी. और अभी इलास्टिसिटी नहीं करवाया कि वो भी करवा? इलास्टिसिटी भी हो गया, इलास्टिसिटी भी हो गया. इक्विलिब्रियम इलास्टिसिटी आज था लेक्चर, आज कराया. ओके ओके, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी मेन है. ये तो भी हम बेसिक सीख रहे हैं. होप तुम लोगों को समझ रहा है, हेल्पफुल है, क्लियर है. ठीक है ना? फिर भी क्लियर नहीं है तो बोल सकते हो. और देन exceptions to the law of demand. अब what is exceptions? Exceptions तो होता है कि किस पे law of demand apply नहीं होगा. Law of demand will not apply on the following things that are known as exception. मतलब डिमांड कब उल्टा जाएगा? जनरली डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट when it will not apply, when the demand curve will be upward sloping. तो गिफिन्स पैराडॉक्स ये बहुत फेमस है, इस पे भी आ सकता है कुछ शॉर्ट नोट अगर सिलेबस में है तो. कि गिफिन्स पैराडॉक्स क्या होता है कि जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना उस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. इंफीरियर गुड्स यानी क्या? पाव, ब्रेड, कम भाव वाले गुड्स. तो ये सबसे पहले ना रॉबर्ट गिफिन, इसने ये बिहेवियर नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में इन रिलेशन टू ब्रेड. तो उसने क्या देखा, जब ब्रेड का प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेड तो ऑलरेडी सस्ता है, ठीक है ना, तो जब ब्रेड का प्राइस सस्ता हो जाता है ना तो कंज्यूमर ज्यादा ब्रेड नहीं बाय करता है, वो कम ब्रेड बाय करता है. और जो पैसे बचते हैं ना उससे वो क्या करेगा, उससे वो मीट बाय करेगा थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी. क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो उसको ब्रेड ही खानी पड़ती है डेली. लेकिन जब ब्रेड सस्ता हो गया तो वो सोचेगा कि अब मैं ब्रेड थोड़ा और कम बाय करूं, और सस्ता हो गया तो पैसे बचे, और मैं थोड़ा और कम बाय करूंगा तो और पैसे बचे, और जो पैसे बचे उससे मैं मीट बाय करूंगा. तो आई कैन हैव मीट विद ब्रेड, बिकॉज इट इज द एग्जांपल that was observed in England. So therefore it is the example of bread and meat. But this Giffen's paradox applies on all the type of inferior goods. Clear? So inferior goods, Giffen paradox means this law will not apply on inferior goods. This law will not apply on prestigious goods, expensive goods like diamond, gold. ये तो स्टेटस सिंबल है ना. अभी शादी आती है तो 1 लाख भाव हो गया है गोल्ड का, तो भी लोग खरीदेंगे. स्टेटस, कितना गोल्ड दिया लड़के वालों ने, लड़की वालों ने. और बहुत लोग जो रिच है दे बाय गोल्ड, दे विल नॉट सी द प्राइस. नहीं की प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी गोल्ड की. 50,000 था 4 साल पहले गोल्ड का भाव, आज 1 लाख हो गया. In 21 it was less than 50,000, not even 50,000.
एंड दिस इज पर 10 ग्राम. गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए. मालूम है ना, गोल्ड के प्राइसेस इज एक्सप्रेस पर 10 ग्राम. 10 ग्राम का रेट होता है, ये पता होना चाहिए. और सिल्वर की प्राइसेस ऑल्सो हैव क्रॉस 1 लाख. इकोनॉमी में क्या चल रहा है, यू शुड हैव द करंट अफेयर नॉलेज ऑल्सो. What is going on? What are the price of various commodities? What are the bank rate and everything? What is the RBI, SEBI new rules, regulations that are coming? And what is the GDP of India? What is the inflation rate, CPI, consumer price index, wholesale price index that is being published every week? कितना है इंडिया में, क्या इन्फ्लेशन रेट है, ये सब करंट अफेयर्स का नॉलेज होना. फिर अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हु स्टार्टेड इट, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब थोड़ा बहुत में न्यूज व्यूज भी पढ़ने का टाइम मिलता है, या आजकल तो यूट्यूब पे मिल जाता है. थोड़ा बहुत सुन के नॉलेज यू शुड हैव अबाउट एवरीथिंग. देन स्पेक्यूलेशन. व्हाट डज स्पेक्यूलेशन मीन? कि जब हम स्पेक्यूलेट, अभी जैसे कि ईरान इसराइल वॉर, तो लोग क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, गोल्ड का भाव और बढ़ेगा. क्योंकि जब भी वॉर होता है ना, तो गोल्ड इज द सेफेस्ट एसेट टू इन्वेस्ट. सेफेस्ट हेवन, हेवन माना जाता है गोल्ड को. कि भाई शेयर मार्केट गिर सकता है, वॉर हुआ तो गोल्ड में अपना पैसा नहीं डूबेगा. गोल्ड में तुम कभी भी इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा लॉन्ग टर्म में डूबेगा ही नहीं. कंपनी का शेयर डूब सकता है, कोई कंपनी लॉस में गई, जैसे कि यस बैंक, सत्यम कंप्यूटर्स, जो 500-700 रुपए से 7-8-10 रुपए तक भी कंपनी का भाव हो सकता है. लेकिन गोल्ड का भाव 1 लाख से मे भी 80,000 आ जाएगा, लेकिन फिर 1.5 लाख 2 लाख भी जाएगा. तो गोल्ड कभी तुम्हें लॉस नहीं देगा. तो इसलिए गोल्ड सिल्वर इनको सेफ माना जाता है. और स्पेक्यूलेशन जब करते हैं ना, जैसे एग्जांपल क्या होता है, दिवाली के पहले मिठाई ज्यादा बनती है, तो ऑयल और शुगर उसमें ज्यादा लगता है, तो ऑयल और शुगर का भाव बढ़ जाता है. अभी तो इतना कुछ शॉर्टेज नहीं है, बट जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मम्मी मुझे ही बोलती थी, यार 5 किलो 10 किलो चीनी ला के रख ले यार, अभी दिवाली आने वाली है, फिर मिलेगा नहीं, भाव बढ़ जाएगा. सो आई रिमेम्बर दैट. आई डोंट नो तुम लोग भी ऐसे करते हो क्या, बट सो दैट इज द थिंग कि भाव बढ़ रहा है, फिर भी लोग और ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि आगे और भाव बढ़ने वाला है. तो तब तो लॉ अप्लाई नहीं होएगा. प्राइस इल्यूशन होता है, कंज्यूमर को इल्यूशन है कि ब्रांडेड गुड्स हाई प्राइस होता है. सेम क्वालिटी तुम्हें ना बांद्रा में, मलाड स्टेशन और एनी अदर स्टेशन में भी तुम्हें वो सेम क्वालिटी ना आधे भाव में मिलेगी, बट H&M खरीदेंगे हम, वहां पे जाके जो जीन्स का तुम लोग दे दोगे 2,000-3,000, मे बी सेम क्वालिटी, वेयर अ रिटेलर विदाउट अनब्रांडेड प्रोडक्ट, small shop, but we will not buy that because many youngsters buy the branded products only nowadays. तो price illusion होता है, वो expensive. So the law of demand is not applied on that. Ignorance. Sometimes consumer does not know the price, so he buy more even at a high price. उसको price पता ही नहीं है. प्राइस कम हो गई, लेकिन तो अभी जैसे 1 लाख है, तो मैंने बोल दिया गोल्ड का भाव 1 लाख है. तुम 10 दिन बाद गए ऐसे ही, तो तुमने शॉपकीपर को पूछा तो बोलेगा 80,000 भाव है, और तुम्हें नहीं पता कि 10 दिन में भाव गिर गया इतना. तुम बोलोगे सर ने तो 1 लाख बोला था, ये तो 80 बोल रहा है, खरीद लो. तो हैबिचुअल गुड्स, अब जो हैबिट वाले गुड्स होते हैं ना, वो भी लोग खरीदेंगे ही. सर्टेन गुड्स लाइक टी, देन सिगरेट होता है, जो यंगस्टर्स सिगरेट स्मोक करते हैं, राइट, तो दे बाय ओनली. सिगरेट पे तो कितना टैक्स लग गया, 2-3 साल में तो उसके भाव डबल हो गए, ट्रिपल हो गए. बट जिनको हैबिट है, दे विल बाय इवन एट अ हायर प्राइस, द डिमांड विल नॉट फॉल. जिनको चाय पीने की आदत है, वो चाय पीते ही है 2 टाइम, किसको 5 टाइम भी पीने की आदत होती है, 1 टाइम आदत है तो 1 टाइम, दे विल ड्रिंक टी, राइट. क्लियर है ना?
ये वेरिएशन इन डिमांड, और ये तो तुम लोगों को नहीं है सिलेबस में, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड है क्या? साक्षी है, एनीवन एल्स? Sir, it's there. It's there. It's there. चलो ये भी सिखा देता हूँ. Let me check. I have the image. I will check in the mobile one. और क्या क्या है? Because this is 12th standard textbook, but इसमें ऑर्डर में है, तो इसलिए मैंने सर चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला जो है ना, ऐसा दो होता है जो, वो है ना. हाँ वो है. मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ डिमांड में क्या क्या है. डिमांड एंड सप्लाई में द डिमांड शेड्यूल, द डिमांड कर्व, डिमांड शिफ्ट्स तो हम पढ़ेंगे, उसमें तो केस स्टडी भी आएगा मिड सेम में. शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई साइमल्टेनियस, वो तो सप्लाई होने के बाद इसके केस स्टडीज में पढ़ाऊंगा. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. अच्छा, डिमांड शिफ्ट्स में ये आ रहा है चेंज इन डिमांड, ये जो है ठीक है. और फिर इलास्टिसिटी है. देन प्राइस इलास्टिसिटी, कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. तो हम यहाँ तक आज कवर करते हैं इस टाइम परमिट्स, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी. एंड देन द सप्लाई, तो इस पे केस स्टडी भी आएगा डिमांड और सप्लाई का मिला के हैं. जब हमारा डिमांड सप्लाई हो जाएगा तो केस स्टडी विल आल्सो कम ऑन द shifts in demand and supply. That I will keep one separate lecture only on the case study of 30 marks, part C. ठीक है, तो ये भी है. चेंजेस इन डिमांड है, वेरिएशन नहीं है. शिफ्ट्स इन डिमांड, देखो चेंजेस इन डिमांड क्या होता है कि जब भी एक कमोडिटी का डिमांड कम या ज्यादा होता है, चेंज होता है, राइट, है ना, बिकॉज ऑफ other factors, not because of price. हमने क्या देखा, जो फैक्टर्स पढ़े ऊपर, डिटर्मिनेंट्स पढ़े कि प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होगा. प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड, बट दैट इज नॉट इन सिलेबस. तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में तो है. बट प्राइस तो सेम है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है, इनकम, पॉपुलेशन, टैक्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बाकी फैक्टर चेंज हुए और उसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हुआ, उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. जो यहाँ पे लिखा भी है, हाईलाइटेड है कि when demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors and price remain constant, it is known as changes in demand. And there are two types of changes. Either demand will increase or either demand will decrease. So what is increase in demand? Increase in demand means any favorable change in other factors like taste, income, climatic condition, price remain constant. क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है और कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. जब भी डिमांड इंक्रीज होगा ना, तो जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट होगा. दिस इज द डायग्राम ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और ये केस स्टडी में काम आने वाला है तुम लोगों को. कभी मैं वापस एक्सप्लेन तो करूंगा, बट ये याद रखो अगर मैं पूछता हूं तो कि if demand increases, the demand curve will shift towards right. तो ये ओरिजिनल डीडी डिमांड कर्व था, प्राइस उतना ही है, पी का पी है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो क्यू का Q1 हो गया. तो जो डिमांड कर्व है वो डी की जगह नया डिमांड कर्व D1 D1, द डिमांड कर्व शिफ्टेड ऑन द राइट साइड. क्लियर? सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड, कि कोई भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से, अनफेवरेबल फैक्टर्स की वजह से द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दैट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. और अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा. यानी दिस इज द राइट वन इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व डी, एंड इफ डिमांड डिक्रीजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस,
not because of price but because of any other factor, then demand curve will shift towards the left. Price is same but the quantity is reduced, therefore the demand shifts towards the left. तो ये शिफ्ट याद रखना। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो डिमांड कब शिफ्ट होता है? अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होता है ना, मतलब प्राइस कम हुआ और डिमांड इंक्रीज हुआ, तो हम उसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते हैं, हम उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। If demand increases because fall in price, so we say expansion of demand, and in that demand curve will not shift. डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, डिमांड कर्व डीडी ही रहेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी पहले प्राइस पी था तो ये हमारा डिमांड था ए, प्राइस पी से P1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 हो गया तो डिमांड B हो गया, तो द पॉइंट शिफ्ट्स ऑन द सेम कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट, बट डिमांड कर्व विल बी सेम। सिमिलरली प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम होती है प्राइस बढ़ने से, तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, डिमांड कर्व वही रहेगा, जो पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा उसी डिमांड कर्व पे। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो प्राइस की वजह से अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ता है तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, और उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, एक्सपेंशन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। तो दिस इज आल्सो क्लियर ना? ये भी क्लियर है सबको? हाँ सर। देन आता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये सब पीपीटीज में भी क्या नया है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, ये टाइप्स ऑफ डिमांड है, ये मैंने नहीं बताया था। ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये डिमांड शेड्यूल, देन दिस इज द डिमांड कर्व, फिर डिमांड फंक्शन तो ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। टाइप्स ऑफ गुड, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट क्या होता है वो मैंने बताया ऑलरेडी। नॉर्मल इंफीरियर गुड्स होता है, गिवन गुड्स होता है ना। नॉर्मल गुड्स जो कंज्यूमर नॉर्मली बाय करते हैं हम रेगुलरली, तो इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड भी बढ़ता है। दिस वी विल डिस्कस इन इलास्टिसिटी। फिर शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अभी जो हमने डिस्कस किया कि डिमांड इंक्रीजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, देन the demand curve shift towards the right, so that is known as shift of demand curve, है ना। and if it is moving on the same point तो उसको हम क्या बोलते हैं, because of change in price। फिर सप्लाई आ गया, ये तो सप्लाई को हम बाद में करेंगे। तो ये पीपीटी में भी कुछ नया तो है नहीं, इसमें भी देख लेता हूँ। ये भी व्हाट इज डिमांड सेम है, बिकॉज ये पीपीटी आईवीएस के पास्ट ईयर्स के हैं, तो इसीलिए तो टेक्स्टबुक है बट सेम ही है। देखो लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व है, दैट इज आल्सो सेम। मार्केट डिमांड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हमने डिस्कस किया। सी ये टेक्स्टबुक में ना बहुत सिंपल वे में, तो आई विल सी कि इसमें से पढ़ो, बहुत सिंपल है और समझ भी जाएगा रेदर देन बहुत सारे पीपीटीज देखने से, क्योंकि सब है तो वही। यू विल गेट द सेम थिंग ओनली। ये वो वेरिएशन और चेंज जो अभी मैंने बताया कि वेरिएशन मतलब प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होता है, और चेंज इन डिमांड मतलब कोई और फैक्टर चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। तो एक्सपेंशन मतलब सेम डिमांड का वही है ये, और ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जिसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जो हमने डिस्कस किया, डिफरेंट प्राइस डिल्यूशन एंड ऑल, राइट। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो नथिंग न्यू इन दिस पीपीटीज। बट जिसने भी वो तानिया मैम का शेयर किया था उसमें से मैं पढ़ा दूंगा, आगे का भी शेयर कर देना जिसने भी वो शेयर किया था, राइट है ना। बिकॉज वो 2 पीपीटी मैंने शेयर किए हैं,
तो जो भी जिनको भी तानिया मैम है फैकल्टी, तो वो हम आगे का भी मैं शेयर करूंगा, तो ऑल विल हैव अ इन ऑर्डर टू स्टडी फ्रॉम दैट. नाउ व्हाट वी विल लर्न इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखो, इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे रबर हम खींचेंगे, जिसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, राइट? तो कोई कोई रबर बहुत ज्यादा खींच सकते हैं, कोई कोई ज्यादा खींचने से टूट जाएगा. तो जो ज्यादा खींच सकते हैं हम बोलेंगे उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, और जिसको हम ज्यादा नहीं खींच सकते उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी कम है. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हाउ मच वन वेरिएबल विल चेंज विद द चेंज इन अदर वेरिएबल, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. कि दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल चेंज होने से कितना चेंज होगा. अगर ज्यादा चेंज होगा तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ज्यादा है, और कम चेंज होगा तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी कम है. तो हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि डिमांड कितना चेंज होगा कोई भी दूसरे फैक्टर चेंज होने की वजह से. नॉर्मली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नॉर्मली जो मेजर फैक्टर है ना डिमांड चेंज होने का, वो है प्राइस. प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. प्राइस चेंज होने से तो डिमांड चेंज होती है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज होगा अगर प्राइस कितने परसेंटेज से चेंज हुई. तो जितना क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ज्यादा है. तो यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर. कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अगर किसी को हार्ड लग रहा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द proportionate change in quantity demanded, proportionate change in quantity demanded to a change in price or any other factor. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं, बट करेक्ट वर्ड अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबको लिखना आना चाहिए. रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, change in the proportion of quantity demanded to a change in price or any other factor is known as elasticity of demand. ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? सर. अब इसमें तुम लोगों को ना 4 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है. इस बुक में तो 3 ही है, इनकम, क्रॉस और प्राइस. तुम लोगों को एक प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, प्रमोशनल. तो देखो, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा इनकम चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. It refers to the degree of change in quantity demanded to a change in the income only. सिर्फ इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंटेज से चेंज होगा, बाकी फैक्टर सेम रहेंगे. दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी. दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? ये फॉर्मूला है y notation is used for income, capital E is used for elasticity, and EY जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी. EY is the notation of income elasticity. And what is the formula of income elasticity? ये सब important है, इसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. Percentage change in quantity demanded
upon percentage change in income. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. So how we will find the percentage change? और या उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ये तो हमने वर्ड्स में लिखा, सिंबल में लिखेंगे तो परसेंटेज, और ये जो ट्राइंगल है जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स चेंज, इसको हम मैथमेटिकली चेंज के लिए यूज करते हैं। तो डेल्टा मतलब परसेंटेज, और ये ट्राइंगल और क्यू को रीड कैसे किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्यू रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम को सिंबल में हम ऐसे लिखेंगे, उसको रीड ऐसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे। और परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे आएगा? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे आएगा? डिवाइड बाय चेंज इन वाई अपॉन वाई। तो ये पूरा लिख लेना है तुमने, इसका पूरा समझ जाएगा तुम लोगों को। तो फाइनल फॉर्मूला तो ये है, फाइनल फॉर्मूला तो देखेंगे तो ये है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट इसमें दो मेथड है, एक और फॉर्मूला होता है, बट पहले तो ये बेसिक वाला याद करो। सम्स में इसका एक और वर्जन है, दैट आई विल एक्सप्लेन। ये फॉर्मूला क्लियर है ना क्या है? ये भी सबको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये देखो, चेंज इट रिप्रेजेंट्स चेंज, क्यू इज द ओरिजिनल डिमांड, Q1 भी लिख सकते हैं हम उसको, Y या Y1 इज द ओरिजिनल इनकम, डेल्टा Q is the change in quantity demanded, delta Y is the change in income of a consumer. This I have already shared, file number 03, SYDC Maharashtra Board textbook. Everything you will find in it. Chapter 3A and 3B are important for your IBS curriculum. And ये जो है इधर, ये तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, ये तो तुम्हें एग्जाम में काम आएगा ही 100%, सम्स में भी काम आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगा तो वो लोग ये पूछेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करो और एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। Find income elasticity and comment on the nature of goods. So if income elasticity is positive, the goods are normal goods. If income elasticity is negative, the goods are inferior goods. And if income elasticity is zero, then the goods are necessary goods. So income elasticity zero आया, so you should know zero means this is necessity goods. Negative means it is inferior goods. Positive means it is normal goods. Right? ये याद रहेगा ना, ये भी याद है। क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर जब भी इको का होगा ना, वो पूरा न्यूमेरिकल्स का होगा। All important numericals of demand, elasticity and all the important numericals we will discuss. That will definitely come from this topic. Then cross elasticity. What is cross elasticity? Income elasticity में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? Any doubt in income elasticity? No doubts? No cross elasticity. देखो, it refers to a change in quantity demanded of one commodity due to the change in the price of other commodity. दूसरे commodity का price change हुआ, उसकी वजह से हमारी commodity का demand change हुआ, उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ई इज इलास्टिसिटी, सी इज द फॉर क्रॉस। तो EC रिप्रेजेंट्स क्रॉस इलास्टिसिटी, द फॉर्मूला इज सेम, न्यूमरेटर सब में सेम रहेगा, न्यूमरेटर विल बी सेम इन ऑल द इलास्टिसिटी, डिनोमिनेटर चेंज होता है। यहाँ पे इनकम है तो डिनोमिनेटर में था परसेंटेज चेंज इन इनकम, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी है तो डिनोमिनेटर में होगा
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. तो अगर हमारा कमोडिटी ए है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, फॉर्मूला विल ऑल्सो बी सेम. Percentage change in quantity of A upon percentage change in price of B and इसका symbol. और ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना, ये तो याद रखना ही है कि अगर पॉजिटिव है क्रॉस इलास्टिसिटी तो those are substitute goods. If cross elasticity is negative, then those are complementary goods. Substitute goods का एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल टी एंड शुगर. एंड इफ क्रॉस इलास्टिसिटी is zero, so we will say they are unrelated goods, they are not related goods. If cross elasticity is 0, so not related goods. If it is negative, then complementary goods. If it is positive, then those are substitute goods. क्लियर है ये भी. देन प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? सेम, नीचे क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कि चेंज इन डिमांड, proportionate change in demand due to the proportionate change in price, other factors remaining same. तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर तो वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस of the same commodity, not other commodity. So that is known as price elasticity. उसका भी फॉर्मूला वही है. तो अभी ये तीनों क्लियर है ना कि कितना इजी है एक्सप्लेनेशन? यस आदित्य. सर इन इनकम इलास्टिसिटी जब भी वो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो दिया था तो इट इज द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स बेस्ड ऑन इनकम. तो अभी नॉर्मल गुड्स है तो अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उनका भी डिमांड भी बढ़ेगा, उसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं. और नेसेसरी गुड्स है तो उनका प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर भी डिमांड लाइक बढ़ेगा ही, क्योंकि हम लोग कम नहीं करने डिमांड वाले. नहीं बढ़ेगा. नमक मैंने एग्जांपल दिया, मेडिसिन, मेडिसिन ज्यादा थोड़ी खाओगे. एक गोली डॉक्टर ने बोला है, प्राइस कम हो गया तो ज्यादा थोड़ी खरीदोगे, या प्राइस बढ़ गया तो कम थोड़ी खरीदोगे. मतलब तुम्हारी इनकम, अच्छा इनकम बढ़ गई तो तुम मेडिसिन ज्यादा थोड़ी खरीदोगे कि तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा मेडिसिन खरीदो, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा सॉल्ट खरीदो. नो ना, राइट. तो नेसेसरी गुड्स में सॉल्ट, मेडिसिन वो आता है, उसका इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. इनकम बढ़ने से उसका डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी 0 आएगा. राइट, क्लियर? यस. और ये क्रॉस इलास्टिसिटी, ये भी याद रखें. प्राइस इलास्टिसिटी तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होता है, फॉर्मूला सबका एक याद किया तो सबका बना सकते हो, और स्टेटमेंट सेम है. एक ही स्टेटमेंट याद करोगे तो खाली तुम्हें पता है कि मेन स्टेटमेंट क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम. इनकम में इनकम की वजह से, क्रॉस में प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, और प्राइस में प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट. और प्रमोशनल जो इसमें नहीं है ये टेक्स्ट बुक में, प्रमोशनल इलास्टिसिटी क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा किया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ा, तो दैट इज प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर ना? ये भी क्लियर है ना? पक्का. इलास्टिसिटी तो सबको आना ही चाहिए, उसका मीनिंग, अलग अलग टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, एकदम मतलब बिना बुक में देखे ऐसे लिखना है. किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू आंसर. ये साक्षी. सर ये पूछना था कि प्रमोशनल आपने इलास्टिसिटी क्या बोला, अभी फिर से बोलना. कि चेंज, proportionate change in quantity demanded due to change in advertisement expenditure. Okay, or advertisement. expenditure on promotion. Okay, okay. Thank you. Welcome. ठीक है, ये क्लियर है. अब ये भी इम्पोर्टेंट है एक और.
कि जो ये तो टाइप्स किसके थे, ये टाइप्स जो इनकम, क्रॉस, प्राइस और प्रमोशनल, दैट वे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नौ प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप है, वो सिखाया है क्या साक्षी? प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स है। हाँ Types of ये price- ना परफेक्टली हाँ, इनइलास्टिक ये सब सिखाया। ये बस आज का लास्ट टॉपिक है, देन हमारा इलास्टिसिटी खत्म होगा। हम कल तो मैं अकाउंट्स रखूंगा, वो साइंटिफिक अभी नहीं रखता हूँ क्योंकि सबने बाई नहीं की है। मैं कल साइंटिफिक कैलकुलेटर का एक्सप्लेनेशन रखने वाला था, बट अकाउंट्स में ना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का सीईसी आने वाला है, और उसमें भी 2 लेक्चर मुझे लगेंगे। वो बहुत लोगों को हार्ड लग रहा है, जर्नल लेजर आई गेस, है ना। कॉमर्स स्टूडेंट्स को मे भी आता होगा, आता है साक्षी जर्नल लेजर? बाकी स्टूडेंट्स को आता है? सर हार्ड लग रहा है। हाँ, तो कल मैं वो अकाउंट ही रखने वाला हूँ, जर्नल, लेक्चर, ट्रायल बैलेंस, और बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला। अकाउंट्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। I scored 99 in 12th board in accounts without any tuition or classes. वो हमारे टाइम पे तो क्लासेस होता ही नहीं था। I am 94, 95 graduate students, right? 30 years back. So this is the last topic. I will explain the types of price elasticity of demand, and then I will finish the lecture and I will take the doubts or questions if anyone has. See, price elasticity तो हमने पढ़ा कि it is the change in quantity demanded because of the change in price. But there are 5 types of price elasticity of demand. First is perfectly elastic demand. What is perfectly elastic demand? कि there is zero change or very slight change in the price. प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है या बहुत मामूली चेंज है, बट जो डिमांड चेंज हुआ वो इनफाइनाइट चेंज हुआ। तो इसमें क्या याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक में स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस brings an infinite change in quantity demanded. The change in price is zero or very little, but the change in demand is infinite. That is known as perfectly elastic demand, and it is only theoretical concept. Practical ऐसा possible ही नहीं है। और उसका डायग्राम कैसे बनेगा? अ पैरेलल लाइन, है ना, horizontal straight line parallel to x axis. This is the demand curve. प्राइस चेंज नहीं हुआ, डिमांड यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ आगे जाते जाएगा। ईडी, तो ईडी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड सपोज 10% है और प्राइस 0 है, तो 10/0 मैथ्स में क्या होता है? देखो, ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट भी सबको पता होना चाहिए कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 मींस इंफिनिटी, बट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। ये पता होगा ना काफी लोगों को। नहीं पता है तो मैंने बताया कि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और कोई नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ईडी इज इनफाइनाइट बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 0, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0 बिकॉज वी आर सेइंग 0 चेंज, और स्लाइट मींस 0.001%, so that is equal to 0 only. और डिमांड चाहे 5%, 10%, 20%, 50% से चेंज हुआ है, तो 10, 20, 30, 40, 50 divided by 0 will be infinite. So therefore ED is infinite, and this is the demand curve is horizontal straight line parallel to x-axis. ये भी लिखना है, ये डायग्राम बना देना है, और ये एक स्टेटमेंट और ED इनफाइनाइट। 4 चीजें ही याद रखनी है। एक तो ये स्टेटमेंट कि प्राइस में कितना चेंज, डिमांड में कितना चेंज। दूसरा, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ईडी इनफाइनाइट होता है, और ये डायग्राम, ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यहाँ क्या होता है कि प्राइस चेंज हुआ, डिमांड 0 चेंज हुआ, द चेंज इन डिमांड इज 0। उल्टा, यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज 0,
Here the change in demand is zero. प्राइस कितना भी परसेंट से बढ़े या कम हो, प्राइस 20% से गिरा बट डिमांड चेंज ही नहीं हुआ, तो दिस इज जीरो, द न्यूमरेटर इज जीरो, तो द आंसर विल बी जीरो. तो देयरफॉर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हम किसको बोलते हैं? व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, देयर इज नो इफेक्ट. एंड ये कब होता है? ये होता है रेयरली ऑकर. ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कभी अकर होने का चांस ही नहीं है, बट ये अकर होगा इन नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट. मिल्क तो चलो लोग, क्योंकि मिल्क के तो और भी यूजेस है, मिल्क आधा भाव हो गया तो मिल्क तो हम ज्यादा भी खरीद लेंगे क्योंकि हम उसका कुछ और यूज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, राइट? मिल्क शेक, स्वीट्स, खीर एंड वेरियस अदर थिंग वी कैन मेक ऑफ दैट. बट सॉल्ट एंड मेडिसिन आर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इसका कोई एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये भी क्लियर है. देन तो इसका लाइन कैसा होगा? इसका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो जो लिखना है शॉर्ट में एकदम अगर लिखना. देन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम है, यानी प्राइस 50% से कम हुआ या 50% से बढ़ा तो डिमांड भी 50% से कम या ज्यादा हुआ. प्राइस 50% से कम तो डिमांड 50% से राइज हुआ, एंड वाइस वर्सा. द चेंज, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड and the percentage change in price is same. So when both are same, so answer will come 1. So when ED is 1, we say that it is unitary elastic demand. Unit, one unit. Right? और इसमें क्या होगा? ये जो कर्व होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. The slope of the demand curve is rectangular hyperbola. What does this rectangular hyperbola means? कि ये जब तुम ये डायग्राम बनाओगे, अगर डायग्राम बनाने का आता है, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन P and P1 एंड डिस्टेंस बिटवीन Q and Q1 शुड बी सेम. ये तुम्हें माप के बनाना पड़ेगा. जब हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का अगर डायग्राम बनाते हो तो एक ही चीज याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन P1 and distance between Q1 should be same. तो ही वो डायग्राम को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का डायग्राम बोलेंगे. क्लियर है? दिस इज ऑल्सो क्लियर ना? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. बस दो टाइप और बचे हैं. अब ये वाला रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अब रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है? कि when a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, यानी जो चेंज इन प्राइस है वो कम है और जो चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा है. यानी चेंज इन डिमांड 100 है और चेंज इन प्राइस 50 है, या चेंज इन डिमांड 80 है और चेंज इन प्राइस 50 है, 60 है. यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. That is known as relatively elastic demand, and here your ED value is greater than 1 because तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. रिलेटिवली इलास्टिक में क्या ध्यान रखना है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. कुछ भी 1.5 भी रिलेटिव इलास्टिक है, 2 भी रिलेटिव इलास्टिक है, 3, 3.5, 10, 1 से बड़ा आया उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ही बोलेंगे. क्लियर है? इसका डायग्राम बनाते वक्त क्या याद रखना है? ये जो Q1 का डिस्टेंस है, दिस शुड बी मोर than the distance of P1. While preparing this diagram, एक ही बात याद रखना है कि the distance of Q1 should be more
than the distance of PP1 and the slope is flatter. And the slope is flatter. The demand curve has a flatter slope. ये flatter slope है. Then relatively inelastic demand में उल्टा. The percentage change in demand is less and the percentage change in price is more. Numerator छोटा है denominator से, तो ED will be less than 1. Price ज्यादा percentage से change हो रहा है, demand कम percentage से change हो रहा है. That is known as relatively inelastic demand. ED less than 1 आएगा. अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो PP1 का डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, QQ1 का डिस्टेंस कम होना चाहिए, और ये जो स्लोप है वो स्टीपर होगा. फ्लैट और स्टीप पता है ना, फ्लैट मतलब कम कम स्लोप है, इसमें धीरे से फिसलेंगे, और ये स्टीपर है, इस पे एकदम आराम से गिर जाएंगे. तो स्लोप इज स्टीपर. यहाँ पे सब लिखा हुआ है, राइट ना, क्लियर ना. तो ये सब बस इंपॉर्टेंट है, इतना ही है. डिमांड और ये न्यूमेरिकल्स तो हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं वो भी अलग अलग मेथड है, उसके भी न्यूमेरिकल्स, उसके मेथड्स वो भी हम डिस्कस करेंगे. अभी तो मैं 2 दिन तो अकाउंट्स रखूंगा, कल वेडनेसडे तो छुट्टी है, एंड थर्सडे आई विल कीप अकाउंट्स. Then I will come to this, right? Other subjects.